Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. सब बोलिए प्रेम से, जोर से। हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदर्श श्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदर्श श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोप श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की ब्रज भूमि श्री वृंदावन धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री द्वारिकापुरी धाम की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी देवी की जुगधर्म श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
कृष्ण हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष बुधवार के इस सत्र में। क्यों विशेष है ये? नवरात्रि चल रही है तो क्या हुआ? हाँ, नवरात्रि के चलते हुए आप सब लोग इधर आए, इसीलिए विशेष है ये। विषय तो विशेष ही है, पर आप सब लोग आए इसलिए आपका धन्यवाद। तो आप में से कितने लोग जानते हैं कि कार्तिक, कितने लोग नहीं जानते हैं कि कार्तिक महीना क्या है? माता में सब लोग जानते हैं, सबको प्रसाद मिलेगा, चिंता मत करो। सब जानते हैं कार्तिक महीना के बारे में? नहीं जानते। तो अभी आने वाले मंगलवार से 8 या 7 शरद पूर्णिमा 7 तारीख को है, 7 अक्टूबर, तब से कार्तिक महीने का प्रारंभ होता है, शरद पूर्णिमा के दिन से। तो शरद पूर्णिमा हम लोग जानते हैं कि किसके लिए विख्यात है। किसके लिए विख्यात है? हम लोग शरद पूर्णिमा को क्या करते हैं वो बताओ। सबसे पहले तो दूध पोहा खाते हैं, गिलके का भजिया खाते हैं, घारी तो चंदी पड़वा, हाँ वही चंदी, ओ घारी सूरत स्पेशल। क्या करते आप लोग, क्या करते बताइए शरद पूर्णिमा को? कुछ नहीं करते? पौवा, दूध पोहा वो तो हो गया, इसके अलावा दूध पोहा बस हो गया, शरद पूर्णिमा हमने मना ली। हाँ, और उस दिन क्या होता है? नवरात्रि का प्रथम दिन, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, अष्टम, नवम और कल है दशम, दशहरा। तो 9 दिन इतना नाच नाच के क्या कहते हैं, जी नहीं भरता। तो फिर आखिरी एक मौका मार देते हैं, कब? शरद पूर्णिमा के दिन। और लोग कहते हैं महारास। क्या कहते हैं? महारास। केवल वही अधिकारी है महारास के। तो हम देखते हैं कई जगह पे ऐसे क्या कहते हैं, प्रायोजित होता है, आइए हरे कृष्ण कीर्तन के संग रासोत्सव। हमारे अंदर एक भावना छुपी है, क्या? भक्ति के नाम पे भोग करने की। वो आगे आएगा, प्रवचन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। भक्ति के नाम पे भोग करना। अगर भक्ति के नाम पे भोग करेंगे तो क्या होगा, उसके लिए आपको बरकरार रहना पड़ेगा पूरे प्रवचन में कि क्या दशा होती है। क्योंकि हमारे अंदर अभी सबसे प्रथम क्यों रास नहीं खेलना चाहिए, वो तो पता होना चाहिए ना। नहीं तो बोलेंगे भाई आप प्रभु जी तो बहुत खतरनाक, पहला के कांदा लहसुन नहीं खाओ, पछी के बहारनू नहीं खाओ, पछी के आम नहीं करो, सास भी कभी बहू थी जो अभी अभी नहीं आई है वो भी देखने को मना बोलते हैं। उससे क्या हो जाता है? इंडिया पाकिस्तान फाइनल मैच, एशिया कप, वो भी देखने को मना बोलते। वो तो आनंद प्रदान करता है ना, तो क्या क्यों नहीं देखना चाहिए? और फिर कहते हैं, अभी तो बोलते गरबा भी मत खेलो। कितने लोग खेले गरबा बताओ 9 दिन? आज सोचे होंगे कि चलो भाई ये तो 9:30 को ख़त्म हो ही जाता है ना, और 9:30 को तो उधर आरती शुरू होती है। फ्यूजन कई जगह में तो
कितना लेट आरती शुरू होता है और सुबह 4 बजे तक चलता है। हम जब मंगल आरती में आते हैं तो वो रासोत्सव खेल के जाते हैं। तो क्या है ये? खेलना चाहिए गरबा? बहुत सारी जल्दी जल्दी बताइए, आज बहुत सारा चर्चा करना है। जिग्नेश भाई आप बताइए। માતાજીના ગરબા ખાતા પહેલેથી આવતું હોય છે, એટલે લોકો માતાજીના ગરબા ગાય છે, એનું રીઝન શું છે એ ખબર નથી, 5 વર્ષોથી सही बात है, बरसों से प्रथा चली आई है गरबा खेलने की, माता जी को ध्यान में रखते हुए, तो इसलिए खेलते हैं। ठीक है, चलो एक कारण। और कितने लोग खेलते हैं? प्रामाणिकता से हाथ ऊपर कीजिए। गरबा बस 3 ही लोग, बाकी माताएं में कोई नहीं जाता गरबा खेलना। हाँ तो हाथ ऊपर कीजिए अच्छे से, शर्माइए मत। अभी क्यों खेलते हैं गरबा बताइए? गरबा खेल रहे, मैं पहले भी बता चुका हूँ हमारे प्रवचन में कई बार, जो भी कर रहे हैं उसके पीछे कुछ कारण होना चाहिए। मैं आपको इधर से जो भी प्रस्तुत कर रहा हूँ, मेरे पास हर एक चीज़ की वजह है कि ये क्यों नहीं करना चाहिए। और आप अगर कर रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर उसकी वजह बताइए। हमें अंधा नहीं होना है संस्कृति के नाम पे कि बस कर रहे तो कर रहे। बहुत सारे कारण हैं, मैं अभी इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। पर आज जो रूप दिया है, हमने इसकी चर्चा पहले भी की शायद, गणेश उत्सव की, नवरात्रि की। हम माता जी की आराधना के विरोध में नहीं है, लेकिन जो रूप आज लोगों ने दिया है, मानो कई लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, है ना, कई लोग मोहल्ले में रहते हैं, कई लोग रो हाउस में रहते हैं, कई लोग शेरी में रहते हैं, सब जगह पे गरबा होता है। तो वो छोड़ के डोम में गरबा खेलने आते हैं, तो ये कौन सा प्रेम है? तो हम उनको वैदिक संस्कृति वाला गरबा नहीं चाहिए, उनको कैसा गरबा चाहिए? एंटरटेनमेंट हो, जिधर गरबा में मुझे मैच दिखाई जाए। जो गरबा में रात को 12 बजे तक तो गरबा चलता है, लेकिन 12 बजे के बाद क्या? मैं पिछले रविवार को, उसके पहले रविवार को रात को जा रहा था घर पे, तो उधर से देवी माँ को लेके जा रहे थे सब लोग। देवी माँ थे, गणपति जी थे, रिद्धि सिद्धि सब, ऐसा पूरा फैमिली पैक लेके जा रहे थे वो लोग, एक के पीछे भी। और क्या गाना बज रहा था? दिल मेरा सुनने को बेकरार है, कहो ना प्यार है। अभी दुर्गा देवी का और ये गीत का क्या संबंध? ऐसी संस्कृति में अभी हम हंस रहे हैं, पर हम भी इसके ही एक भाग है, हमें इसमें ही नाचना अच्छा लगता है। तो अभी शरद पूर्णिमा आएगी तो सब लोग बोलेंगे चलो गरबा खेलते हैं, और कई बार तो हरे कृष्ण वाले भी गरबा का आयोजन करते हैं। तो हमें लगता है भाई भक्ति बराबर चल रही है, भक्ति में प्रगति हो रही है हमारी। हमें लगता है चलो भाई मैं फ्यूजन में नहीं गया, मैं रमझट में नहीं गया, मैं बिहार में नहीं गया, मैं साई में नहीं गया, मैं किधर नहीं गया। तो अभी तो बड़ा अच्छा आयोजन हुआ है, अलग अलग जगहों पे होता है। तो गलत है ये कि हमारे आचार्यों ने हमें क्या प्रदान किया है वो हमें देखना चाहिए। तो इसको कहते हैं कर्म मिश्रित भक्ति, जो भगवान कदापि नहीं चाहेंगे। आज सबके लिए प्रसाद है, प्रसाद मानो वो प्रसाद में चावल है और चावल में कंकड़ भी है। कंकड़ अगर आप एक निवाला का हा क्या चावल है, दूसरा निवाला, तीसरा, चौथा, क्या है ये, तो हमें चावल खाना अच्छा लगेगा कंकड़ वाला? तो वैसे अगर हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति में अगर सब कुछ मिश्रण है, गरबा, डांडिया इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीज़ें,
तो भगवान कभी पसंद नहीं करेंगे वो भक्ति ग्रहण करना। फिर हम कहते हैं प्रभु जी मैं इतने साल से धोती कुर्ता पहना हूँ, जब से जुड़ा तब से पहना हूँ, तब से 16 माला जप कर रहा हूँ, नियमों का पालन कर रहा हूँ, एक निष्ठ हूँ, प्रामाणिक हूँ, सब कुछ हूँ, फिर भी दाल नहीं गल रही है, फिर भी भक्ति में प्रगति नहीं हो रही है। तो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि चावल में कंकड़ मिला हुआ है। तो कृपया करके ऐसी भक्ति मत कीजिए जिसमें गरबा मिश्रित हो, जिसमें इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीज़ें मिश्रित हो। वह आवश्यकता नहीं है, ज़रूरी नहीं है। क्या गरबा नहीं खेलेंगे तो मर जाएंगे? किसी को कोई पता नहीं कि किसका टिकट कब आने वाला है। कल भी टिकट आ जाएगी हमारी। कौन सी टिकट? पास की बात नहीं कर रहा हूँ, रमज़ट की या फ्यूजन की, कोई पास की हम चर्चा नहीं कर रहे। सीधे ऊपर की टिकट आ जाएगी। कई सारे उदाहरण हम देखते हैं, फिर भी हम हमारे जीवन में बदलाव लाना नहीं चाहते, जो बहुत गलत बात है। अभी कल दशहरा है। क्या है ये दशहरा? अभी सब लोग फॉर्म में होंगे आज। हाँ, रावण को तो मारा था, लेकिन हमें तो कुछ लेना देना, हमें तो लेना देना है फाफड़ा और गर्मा गर्म जलेबी से। दशहरा मतलब कल सुबह लोग, हम मंगल आरती में आएंगे, लोग उधर लाइन लगाएंगे। है ऐसा कल्चर है, ऐसी संस्कृति है फाफड़ा और जलेबी खाने की। तो दशहरा मतलब फाफड़ा जलेबी, बस दैट्स इट। एक बच्चे को पूछा बेटा दूध किधर से आता है? बोले डेयरी में से। उसको ये भी पता नहीं कि दूध गाय देती है। और दही किधर से आता है? दही तो मस्ती में से आता है, मस्ती दही। तो ये पता नहीं है आजकल के बच्चों को कि दूध है, दूध में से दही बनता है, दही में से मक्खन, मक्खन से घी, इत्यादि इत्यादि। तो ये दिशा में हम सब लोग जा रहे हैं। तो ऐसी गलत चीज़ों को पालन कर रहे हम सब लोग। तो कौन से मुद्दे पे थे हम कि भगवान ऐसी भक्ति को ग्रहण नहीं करेंगे? तो अभी भी हमारे हाथ से मौका गया नहीं है। गुजराती में कहते हैं ना, जाग्या त्या थी सवार। अब जग जाओ, अभी तक सोए थे तो फिर आते हैं कार्तिक महीने पे। तो दशहरा हम जो चर्चा कर रहे थे उसके पूर्व में, दशहरा क्या है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था। ठीक है, इतना तो पता है, तो इससे हमारा क्या लेना देना। तो ऐसे पावन दिन और पावन अवसर पे हमें प्रभु श्री रामचंद्र जी की आराधना, पूजा, भक्ति करके उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे अंदर के रावण को मारे। है सब लोग के अंदर रावण है? किधर है बताओ, किधर है रावण बताइए। हाँ, इनविजिबल तो है, कोई बता सकता है रावण? कैसे है बताओ रावण? सब लोगों ने बोला है। हाँ, अहंकार और काम क्रोध। हाँ, हमारे 6 अनर्थ है। कौन कौन से 6 अनर्थ है? सबसे पहला काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य। 6 अनर्थ है हमारे। 6 अनर्थ को हम बचपन से पाल रहे हैं। वो अनर्थ है रावण का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि रावण ने क्या किया था? रावण ने सीता का हरण कर लिया था। वैसे ये 6 अनर्थ ने हमारी भक्ति का हरण कर लिया है। भक्ति का अपहरण हो गया है। वो भक्ति को अभी रावण के चंगुल से निकाल के प्रभु श्री कृष्ण की सेवा में लगाना है, रामचंद्र जी की सेवा में लगाना है। भक्ति को लगाना है कि नहीं? ये है दशहरा।
क्योंकि भगवान इतने कृपालु हैं। रामचंद्र जी कहते हैं कोई व्यक्ति एक बार मेरे मंदिर में आके कह दे कि प्रभु मैं आपका हूँ, तो मैं उनको मेरी शरण देता हूँ। सोचिए कितने कृपालु है भगवान। इसीलिए एक मंदिर है नासिक में जिसका नाम है कालाराम मंदिर। बाकी सब जगह पे आप जाओ तो रामचंद्र जी के विग्रह मिलेंगे आपको गोरे रंग के और हाथ में धनुष लिए हुए हैं, लेकिन एक ही विग्रह पूरे विश्व में है जो काले पत्थर से बने हैं और जिनके हाथ में धनुष नहीं है, जिनका एक हस्त वक्षस्थल पे है और दूसरा हस्त ऐसा है। क्या बता रहे भगवान कि कोई एक बार मुझे आके कह दे प्रभु श्री रामचंद्र मैं आपका हूँ, उनको मैं मेरी शरण देता हूँ। ये विग्रह इसका प्रतिनिधित्व करता है। जैसे एक बार विभीषण जी आए प्रभु श्री रामचंद्र जी की शरण ग्रहण करने, तो विभीषण को शरण प्रदान करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उधर ही उनका राज्याभिषेक कर दिया और उनको कह दिया आज से आप लंका नरेश हो, लंका का राजा बना दिया। और प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रतीक्षा में थे कि कभी ना कभी आके रावण मेरी शरण ग्रहण कर ले। तो भक्तों ने पूछा कि अगर रावण आपने तो विभीषण को लंका का राजा बना दिया, अगर रावण आ गया तो क्या होगा? तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की दया को देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा को समझिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहे अगर रावण आके मेरी शरणागति स्वीकार कर दे तो मैं उनको अयोध्या का राजा बनाने के लिए तैयार हूँ। ये है प्रभु श्री रामचंद्र। तो भगवान कह रहे हैं कि कोई एक बार मुझे आके कह दे तव अस्मि, तव अस्मि, रामायण में ये शब्द है संस्कृत का तव अस्मि, कि हे लॉर्ड आई एम योर्स, मैं आपका हूँ और मुझे आपकी सेवा में लगाइए। केवल बाहरी रूप से ना, अभी प्रवचन के बाद सब लोग बोलेंगे प्रभु मैं आपका हूँ, प्रभु मैं आपका हूँ, रुक जाएंगे। तब भगवान बोलते भाई ये नहीं चलेगा, इधर तो हाथ जोड़े और उधर ताली बजा रहे। तो भगवान सब कुछ सहन कर सकते। एक भक्त के अंदर गलती करेगा तो भी सहन करेंगे, पर अगर किसी के अंदर कपट है वो कभी सहन नहीं करेंगे। कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, कपट पावन नहीं। तो ये है दशहरा। तो आने वाले दशहरे को सिर्फ फाफड़ा जलेबी खा के मज़ा नहीं करनी है, दशहरे को गंभीरता से भक्ति करनी है, भगवान की सेवा में लगना है। ये है दशहरा। तो इतना सब कुछ हो गया। आप सोच रहे होंगे भाई विषय पे तो आओ, टाइम बज रहा है, मेरा भी टाइम हो रहा है, टाइम दिया हुआ है, उसका क्या, जल्दी जल्दी ख़त्म करो भाई। तो अभी आते हम विषय पे, कार्तिक पूर्णिमा विशेष, जिनको कहते हैं शरद पूर्णिमा। मंगलवार को है, मंगलवार को है शरद पूर्णिमा। तो शरद पूर्णिमा एक ऐसा विशेष दिवस है, उधर से कार्तिक मास का प्रारंभ होता है। अगर आप गुजराती कैलेंडर में देखोगे तो कार्तिक महीना प्रारंभ होता है हमारे नवीन वर्ष से, दीपावली जाने के पश्चात, जब अमावस्या जाती है उसके पश्चात। तो एक कैलेंडर निर्धारित होता है पूर्णिमानंद से और एक कैलेंडर की शुरुआत होती है अमासनंद से। तो हम वैष्णव जो है वो पूर्णिमा से पूर्णिमा तक का महीना पकड़ते हैं, इसीलिए हमारा कार्तिक महीना 15 दिन पहले आता है वैष्णवों का। हमारा मतलब गौड़ीय वैष्णवों का। अगर आप यूपी बिहार में जाओगे, राजस्थान जाओगे, उनका भी पूर्णिमा से पूर्णिमा पकड़ते हैं। समझ में आया? तो कोई सोचेगा कार्तिक महीना तो दीपावली के बाद आएगा, तो अभी क्या है? तो वैष्णव का कार्तिक महीना शुरू होता है शरद पूर्णिमा से, पूर्णिमा से महीना बदलता है। तो कार्तिक महीना है क्या? अभी कार्तिक महीना, इनका दूसरा नाम है ऊर्जा व्रत का महीना। कौन सा महीना?
ऊर्जा व्रत। अभी ये ऊर्जा व्रत नाम किधर से आया? श्रीमती राधा रानी का एक नाम है ऊर्जेश्वरी। तो ये कार्तिक महीना श्रीमती राधा रानी को बहुत प्रिय है। तो भी श्रीमती राधा रानी को प्रिय है तो हम क्यों इतने उछल कूद कर रहे हैं? हमें क्या लेना देना? अभी कृष्ण भगवान का प्रिय महीना कौन सा है? भगवत गीता में लिखा है क्या? मासानाम मार्गशीर्षोस्मि। भगवान का प्रिय महीना है मार्गशीर्ष। लेकिन अगर भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है तो हमें गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा श्रीमती राधा रानी की याचना करके फिर हम भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऊर्जेश्वरी, ये ऊर्जा व्रत का महीना है। तो ये महीने में भक्त लोग तपस्या करते हैं। तपस्या मतलब ऐसा नहीं कि चले जाओ डांडी के जंगल में और उधर तपस्या कर दो, ऐसे बैठ जाओ और कोई कहेगा मैं जंगल में जाके माला करूँगा, मैं वन में जाके माला करूँगा, अच्छे से होगी, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, प्रभु जी सेवा के लिए बुलाएंगे भी नहीं। मंदिर में जाते तो प्रभु जी बुलाते रहते हैं सेवा के लिए। तो ये तपस्या की हम बात नहीं कर रहे। तो कार्तिक महीने में क्या करना है वो हम बताएंगे, लेकिन कार्तिक महीना विशेष क्यों है? क्योंकि भगवान ने देखा कि जीव इतने पतित है, इतने पतित है, इतने पतित है, इतने पाप करते हैं, इतने गलत कर्मों में लगे हैं, तो उनके लिए कुछ किया जाए। अभी दीपावली आ रही है। दीपावली में क्या होता है? सब लोग क्या करते हैं? नहीं, वो तो है। और क्या करते हैं? पटाखे फोड़ते, चलो। और चौड़ा फड़ी मठिया खाए और बस इतना ही करते, और कुछ नहीं करते दिवाली में। ये कपड़े खरीदते कि नहीं खरीदते? सब नया नया, ये खरीदना है, वो खरीदना है। क्यों खरीदते? फिर दीपावली धमाका ऑफर, सेल सेल सेल, रस्ते का माल सस्ते में। तो हम लोग देखते भाई इधर सेल 50%, 30%, 20%, सब जगह सेल लगता है। क्यों? क्योंकि सेल दिया तो ज़्यादा लोग आएंगे। तो भगवान ने भी कलयुग के जीवात्माओं के लिए सेल दे दिया है, वो है कार्तिक का महीना। और सेल क्या प्रदान किया है भगवान ने? कि आओ ये महीने में और भक्ति करो। जो ये महीने में भक्ति करता है उनको कई गुना फल मिलता है भक्ति करने का। तो इसका मतलब ये नहीं कि कार्तिक में भक्ति कर लो, बाकी के 11 महीना आराम। तो कार्तिक के महीने में व्रत नियमों का पालन इसीलिए करते हैं ताकि पूरे 11 महीने हम वो कर सके। कई बार भक्त लोग कार्तिक में गंभीरता से मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, और पूर्णिमा से शुरू करते और दूसरे पूर्णिमा की राह देखते हैं कि कब दूसरी आएगी, ख़त्म होगा और मैं झपाझप लग जाऊँगा वापस अपने ज़िंदगी में। नहीं, ये 1 महीना क्यों है कि 1 महीना गंभीरता से पालन करें और पूरे 11 महीने भी वो पालन करें। तो कार्तिक के महीने में भगवान ने ये डिस्काउंट ऑफर दे दी है। तो कार्तिक के महीने में श्रील प्रभुपाद जी को पूछा, श्रील प्रभुपाद जी कार्तिक के महीने में क्या करें? श्रील प्रभुपाद जी ने कहे दामोदर अष्टकम का गान करो और भगवान को घी का दिया अर्पण करो। तो वो हमारे मंदिर में होता है हर रोज़ शाम को 7:30 बजे। तो आप सब लोग आइए, पूरा महीना आपको कुछ खर्च नहीं करना है, सब कुछ मंदिर के द्वारा ही प्रदान होगा, केवल आपको खुद को लेके आना है, बस इतना ही करना है। वो भी बहुत भारी है, उधर जाना भारी नहीं है। उधर जाने के लिए तो कितना कष्ट है। उधर मतलब किधर, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? हाँ, उधर जाने के लिए महंगा पास खरीदो, उतने पे नहीं रुकता। अच्छे अच्छे कपड़े, ऐसा घाघरा बड़ा फैलना चाहिए, ऐसा जब गोल गोल घूमते हैं तो वो भी ऐसा हवा में
उसके साथ साथ घूमना चाहिए। और फिर प्रभु जी माता जी साथ में जाते तो मैचिंग मैचिंग होना चाहिए, जेठालाल के जैसा होना चाहिए, है कि नहीं खर्चा। लेकिन उधर लोग नॉन स्टॉप टाइम टू टाइम 7 बजे से भीड़ शुरू हो जाती है। अभी हम कार्तिक में देखेंगे तो भक्तों को बुलाना पड़ता है, भाई आओ। तो कितना हमारा दुर्भाग्य है, सोचिए। दुर्भागी, इसीलिए दुर्भाग्य है हमारा। इतने दूर भाग गए हम भक्ति से कि जिधर ऐसी, देखो जिधर हमें ज़्यादा रुचि ना, समझ लेना है कि उधर गड़बड़ है। जैसे सबको मीठा खाना अच्छा लगता है। अभी मैं बता दूं कि आज प्रसाद में सबके लिए करेला की भाजी बनाई है, सब्जी बनाई है। तभी सब लगा, अरे यार खाली खोटो आई, वो नहीं आवते तो चालते। भाई दवे नहीं बनाया है, पर बता रहा हूँ। तो करेला खाना पसंद नहीं, पर सेहत के लिए वही अच्छा है। लेकिन मानो मैं आज बोल दूं सबको क्या 3 प्रकार की मिठाई है, रसगुल्ला, रसमलाई, गुलाब जामुन, ये भी नहीं है आज के मेनू में। तो कोई खुश हो रहा होगा, अरे वाह 3 मिठाई है। तो मिठाई खाना अच्छा लगता है इसके लिए, लेकिन इसके लिए खराब है। लेकिन करेला इसके लिए खराब है, इसके लिए अच्छा है। उसी तरह ऐसे जिधर हमारी इंद्रियों को संतुष्टि मिलती है, वो जगहों पे हम स्वाभाविक रूप से चले जाएंगे, है ना। महंगा पास खरीद के, महंगे कपड़े खरीद के। लेकिन इधर सोचिए भगवान कितने कृपालु है। भगवान कहे कुछ मत लेके आओ, सिर्फ आप आओ और मुझे घी का दिया दिखाओ। तो प्रभुपाद जी कहे दामोदर अष्टकम गाइए और घी का दिया दिखाइए। और प्रभुपाद जी का एक भक्त ने प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी मैं दामोदर महीने में मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ये करूँगा। प्रभुपाद जी बोले 4 नियम का पालन गंभीरता से करो, वो है कार्तिक महीना। तो कार्तिक महीने में हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि ये महीने, चलो बाकी के चतुर्मास के 3 महीना ठीक नहीं कर पाया, तो कम से कम कार्तिक का महीना तो मैं गंभीरता से करूं। तो कार्तिक का महीना गंभीरता से करना, इसका मतलब ऐसा नहीं कि एक ही महीना करना है और उसके बाद लग जाना है वापस। पूरे 11 महीने गंभीर रहना है भक्ति में। तो प्रभुपाद जी कहे कि कार्तिक का महीना अगर गंभीरता से पालन करना है, दामोदर अष्टकम, घी का दिया दिखाना है, ठीक है। प्रातः में ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठिए, मंदिर में मंगल आरती आए, मंदिर में नहीं आ सकते तो घर में मंगल आरती कीजिए, हरे कृष्ण जप कीजिए। और उससे अधिक क्या है, जब शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने वेणु बजाया था और सब गोपियाँ अपने घर छोड़ के भगवान के पास आ गए। और जब भगवान के पास आ गए तो सब गोपियाँ सोच रही थी कि कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण मेरे साथ है। और जब भगवान ने देखा कि सब गोपियाँ ऐसा महसूस कर रही है कि भगवान मेरे लिए है और इनके अंदर अहंकार आ गया, भगवान उधर से छोड़ के उनको चले गए। तो सबसे पहली शिक्षा भगवान हमें प्रदान कर रहे हैं कि ये कार्तिक का महीना अगर गंभीरता से पालन करना है तो अपने अहंकार को छोड़िए। मैं अच्छी सेवा कर रहा हूँ, मैं अच्छा बजा रहा हूँ, मैं अच्छा गा रहा हूँ, मैं अच्छा बोल रहा हूँ, मैं इतने भक्त बनाए, मैंने इतना बड़ा मंदिर बनाया, मैं इतना बड़ा मैनेजमेंट करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। जिधर मैं करेंगे भगवान बकरी बना देंगे। अगले जन्म में पूरी जिंदगी भर मैं करते रहना। तो भगवान उनको छोड़ के चले गए क्योंकि भगवान अहंकार, तो ये कार्तिक के महीने में पालन करना है कि हम नम्र बने, हमारे अहंकार की भावना को हम सब लोग छोड़ दें, जो हमने पहले भी चर्चा की, हमारे सबके अंदर है ये चीज़ें। तो अहंकार, तो भगवान ये कभी भी सहन नहीं करेंगे। फिर ये महीना इतना विशेष है कि भगवान ने ये महीने में बहुत सारी लीलाएं की है। जैसे भगवान ये महीने में प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए थे, इसलिए सब लोग दिया जलाते हैं। फिर भगवान ने गोपाष्टमी,
फिर मक्खन चोरी की लीला इत्यादि इत्यादि, गोवर्धन लीला, ये सब कुछ भगवान ने इस महीने में किया हुआ है, कार्तिक के महीने में। तो ये महीने में भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की है, इसीलिए ये महीना विशेष है, क्योंकि भगवान ने जीवों के लिए फ्री में पास बांट रहे हैं। फ्री में है ये, डिस्काउंट ऑफर, आइए और इसका लाभ लीजिए और अन्यों को भी साथ में लाइए, जो अभी तक नहीं आए हैं उनको भी साथ में लाइए। तो अगर हम मंदिर नहीं आ सकते तो घर में हम भगवान को घी का दिया दिखा सकते हैं, भगवान कृष्ण को। तो प्रभुपाद जी कहे, हम प्रभुपाद जी के ऊपर चर्चा कर रहे थे ना, प्रभुपाद जी को पूछा कि कार्तिक का महीना कैसे करें, तो मंगल आरती कीजिए, सब कुछ कीजिए। सब कुछ कीजिए मतलब भक्ति में सब कुछ, भक्ति में ही सब कुछ कीजिए, नहीं तो ऐसा नहीं कर रास्ते से जा रहा था, प्रभु जी ने बोला सब कुछ चलता है। कार्तिक महीने में तो माफ़ है सब कुछ नहीं। तो कार्तिक महीना क्यों विशेष है? क्योंकि भगवान कृष्ण जो इधर विराजमान है, ये पूरा महीना कोई अपराध ग्रहण नहीं करते भक्तों के क्रिया द्वारा। तो शुरू कर दे अपराध करना कार्तिक के महीने में? नहीं, इसका मतलब है कि ये महीना इतना गंभीरता से पालन करे कि अगले 11 महीने हम कोई अपराध ना करें, क्योंकि भगवान बोले ये एक ही महीना डिस्काउंट था, फिर दूसरे महीने से मैं शुरू कर दूंगा वापस गिनती। तो भगवान कृष्ण बहुत कृपालु हो जाते हैं ये महीने में, क्योंकि ये श्रीमती राधा रानी को प्रिय है। इसलिए हम इसके लिए विशेष प्रार्थना, ये महीने में हम अलग अलग प्रार्थनाएं, भीष्म स्तुति, कुंती स्तुति, गजेंद्र स्तुति, फिर दामोदर अष्टकम। तो दामोदर अष्टकम क्या है, उनकी भी हम समय मिला तो चर्चा करेंगे, लेकिन मैंने हमारे यूथ ग्रुप में पूरा दामोदर अष्टकम की प्रार्थना एक एक पैराग्राफ नहीं पर एक एक शब्द का विश्लेषण किया हुआ है उनमें। पिछले 2 वर्ष से हम दामोदर अष्टकम इस तरीके से समझाया हुआ है कि लसत कुंडल मतलब क्या। तो बहुत सारी उसमें डिटेल है, उसमें इधर 12 बज जाएंगे, आपका गरबा रह जाएगा। तो वो हम आपको लिंक भेज देंगे, आप सुन लेना। तो इतना विशेष महीना है कि जिसमें दामोदर अष्टकम की प्रार्थना। तो जब गोपियाँ भगवान के साथ में रासलीला कर रहे थे, तो हमें इनके ऊपर चर्चा नहीं करने, क्योंकि हमारी योग्यता नहीं है सुनने की और बोलने की योग्यता भी नहीं है इसके ऊपर। पर मुद्दा ये है कि भगवान ने सब गोपियों से कहा कि अपने अपने घरों में जाइए अभी। तो बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो आपके साथ में ही रहेंगे। तो फिर भगवान कहते हैं कि मेरे साथ में रहना इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है अपने स्थान पे रह के श्रवण कीर्तन करना। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये बोरिदा जना। क्या कहते हैं भगवान कि ये महीने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण और कीर्तन करना। और ऐसा कहा जाता है, मैंने भाद्र पूर्णिमा को भी कहा था ये, कि जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में श्रीमद् भागवतम का अध्ययन पठन करता है उनको पूरे वेद शास्त्र सब पढ़ने का फल मिल जाता है। 108 उपनिषद, 4 वेद और 18 पुराण, ये सब पढ़ने का फल केवल कार्तिक के महीने में श्रीमद् भागवतम पढ़ने से मिल जाता है। सोचिए कितना विशेष महीना है ये है कार्तिक महीने की विशेषता। तो श्रवण कीर्तन करना, भागवतम पढ़ना, भक्तों की भगवान की सेवा करना, मंदिर में आना, मंगल आरती करना, 16 माला जप करना। जो व्यक्ति 16 माला जप नहीं कर रहे वो जप कीजिए, ये महीने में कम से कम 16 माला कीजिए और प्रण लीजिए, मैं भक्ति में अभी तक गंभीर नहीं था पर अभी से गंभीर बनूंगा, क्योंकि ये महीना कृपा का महीना है। भगवान, आप थोड़ी पहल करोगे तो भगवान विशेष कृपा प्रदान करेंगे जिससे बल प्राप्त होगा और वो बल से हम भक्तिमय कार्य कर पाएंगे। तो ये महीना याचना का महीना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि मैं भक्ति में गंभीर बनूं, गंभीरता से जप कर सकूं, बात करते हुए जप ना करूं।
सेवा गंभीरता से करो, साधना गंभीरता से करो, श्रवण कीर्तन गंभीरता से करो, जो भगवान चाहते थे। भगवान ने गोपियों से कहा ना, अपने स्थान में जाके श्रवण कीर्तन कीजिए, वो ज़रूरी है। क्योंकि श्रवण कीर्तन, प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति के अंग है, 9 अंग है। ये 9 अंग की हमें सेवा करनी, जिसमें प्रथम है श्रवण। तो गंभीरता से श्रवण कीजिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, ये सब कुछ ज़रूरी है कार्तिक के महीने में। तो दामोदर अष्टकम दीप दिखाना, वो तो सही बात है, दीप दिखा के चले जाएंगे, ठीक है, इससे तो कृपा होगी। भगवान तो इतने कृपालु है कि कोई व्यक्ति अनजाने में भी कितना पापी क्यों ना हो, अगर गलती से मंदिर आ गया, गलती से भक्त ने कह दिया दीप दिखाओ, दीप दिखा दिया, भगवान सब पाप से मुक्त कर देंगे। इसका मतलब ऐसा नहीं कार्तिक के बाद वापस पाप शुरू कर दे, अगला कार्तिक तो आएगा ना, एक दिया दिखाएंगे पाप माफ। वैसी भावना से अगर आएंगे तो भगवान कभी माफ़ नहीं करेंगे। निरपराध युक्त, गलत भावना नहीं होनी चाहिए। सवे पुंसा परो धर्मो यथो भक्तिरधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। अहेतु की अप्रतिहता, अहेतु की मतलब बिना किसी हेतु के, और अप्रतिहता मतलब बिना किसी रुकावट के। जब बिना किसी हेतु के और बिना किसी रुकावट के भक्ति होगी, तब भगवान कृपा करेंगे, जो भगवान ने श्रीमद् भागवतम में बताया हुआ है। तो इसलिए कार्तिक का महीना विशेष है। श्रवण कीर्तन, शास्त्रों का अध्ययन, जप, मंगल आरती, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो ये सब विशेषताएं हैं ये कार्तिक के महीने की। तो आइए हम सब लोग ये आने वाली शरद पूर्णिमा से, हमारे हर बुधवार के सत्संग में भी होगा, रविवार के सत्संग में भी होगा, और प्रतिदिन होता है, पर आप जितने अधिक से अधिक दिन आ पाओ उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि दामोदर अष्टकम क्या है वो आपको समझ में आएगा। तो ये सब कुछ हम पालन करेंगे, जिससे हमारे ऊपर भगवान की कृपा होगी। क्योंकि ये महीना भगवान ने स्पेशल डिस्काउंट हम सब लोग के लिए दिया है कि हम भक्ति में थोड़ा भी अग्रसर करेंगे तो भगवान हमें बहुत फल प्रदान करते हैं। फल प्रदान करते हैं मतलब ऐसा नहीं कि हमें भौतिक वस्तुएं मिल जाएगी, नहीं, आध्यात्मिक वस्तुएं, आध्यात्मिक बल प्रदान होगा हमें ये महीने में। तो अपने आध्यात्मिक पूंजी को इस महीने में बढ़ोतरी दीजिए। ये है कार्तिक का महीना। और हम क्या कर सकते हैं ये कार्तिक के महीने में, हमारे घर पे दामोदर अष्टकम का कार्यक्रम रख सकते हैं। आपके घर में वैष्णवों को बुलाइए, उधर दामोदर अष्टकम का गान होगा, पूरे कॉलोनी वाले, अगल बगल वाले सबको बुलाइए। क्यों स्वार्थी बनना है? हम नहीं, हमारे अगल बगल वाले सब पापियों को बुलाएंगे, सबका उद्धार करेंगे। और भगवान क्या कहते हैं, दीप दिखाना तो इतना महत्वपूर्ण है ही, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी को दीप दिखाने के लिए मदद करता है, उनके ऊपर मैं अधिक कृपा करता हूँ। तो अगर आप अपने घर में आयोजन करके अन्यों को दीप दान के लिए प्रेरित करते हो, तो इससे अधिक कृपा प्राप्त होगी। जितनी कृपा हम दीप दिखाने से प्राप्त होगी, उससे कई गुना अधिक कृपा जब हम आयोजन करके दूसरों को इसमें जोड़ के उनसे ये करवाए, तो ये भी एक सुनहरा अवसर है इस कार्तिक महीने में। तो इसीलिए हमने जो आज चर्चा की पूरे कार्तिक महीने की, हमारे पाप पूर्ण जीवन में हम सब लोग लगे हैं, उनको रोक के ये जो मौका भगवान ने प्रदान किया है उनका लाभ लें। और जो भक्तिमय अंग है वो अंग को गंभीरता से करें। प्रतिदिन मंदिर आइए, प्रतिदिन मंगल आरती कीजिए, कम से कम ये 1 महीना, और भगवान की सेवा में जुड़िए, दान दीजिए, दीप दान करें, दामोदर अष्टकम गाइए, 4 नियम का पालन करें, प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करें। ये सब कुछ करेंगे, ये है सही मायने में कार्तिक महीना पालन करना। कोई बोलेगा मैं स्वीट छोड़ दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने, वो तो ठीक है, लेकिन कोई बोलेगा मैं दूध पी के कार्तिक का महीना करूँगा, लेकिन दूध पी के वो बोलेगा अरे यार बहुत, सिर्फ मैं दूध पी रहा हूँ। प्रभु जी बोलेंगे प्रभु थोड़ा किचन साफ करना है, प्रभु नहीं कर सकता, कार्तिक व्रत पालन कर रहा हूँ, केवल दूध पी के कर रहा हूँ, अशक्ति आ गई। तो वो
तपस्या करने का कोई मतलब नहीं। अगर वो तपस्या हमारी सेवा में रुकावट ला रही है तो वो कोई उपयोग का नहीं है। तपस्या करके हम मंगल आरती नहीं आ रहे तो तपस्या कुछ काम की नहीं। अगर हम भागवतम अध्ययन नहीं कर रहे, श्रवण नहीं कर रहे और तपस्या कर रहे तो तपस्या भी कुछ, हाँ ठीक है कुछ फायदा होगा पर इतना फायदा नहीं होगा। तपस्या तो कर्मी लोग भी करते हैं। तो इसीलिए भक्ति के सभी अंगों को अच्छे से पालन कीजिए, तब हम वास्तव में कार्तिक महीना मना पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्तिक मास की